Okay, let's start with the today's lecture. I'm going to share the screen. Just wait for a minute. Okay, I think the screen is visible to everyone now. Okay, access control principle हो गया था, then object and subject, discretionary access control. Now, I think we start with today's the file access control. And one thing is for you, you all are on a unmute mode. ठीक है, तो कभी भी तुम लोग अनम्यूट करके तो कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो पूछ सकते हो. ठीक है. ओके. इफ आई एम ऑडिबल टू यू तो जस्ट रेज योर हैंड. जानवी, जानवी, रेज योर हैंड if I am audible. Anybody else can raise his or her hand. Simrat. Okay. Janvi. Okay. Done, 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 done. Now it's clear to me कि I am audible to you. Now lower down your hands and just start with our today's lecture. Okay. The next is the file access control and we all know what is the access control. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. access control में क्या होता था कि whenever we are giving a access to someone, वही एग्जांपल लेके चलता हूँ. जैसे तुम लोग हो 16-17 स्टूडेंट्स हो क्लास में, तो हो सकता है तुम्हारी मैंने तीन टीम्स बना दी, 5, 5 और 7 की, या 5, 5 और 7 की तीन टीम्स बना दी. पहले जो 5 की टीम बनाई, ग्रुप 1 बनाया, उसको मैंने रीड ओनली असेस दे दिया डेटाबेस का. दूसरे को मैंने रीड और राइट असेस दे दिया. थर्ड वाले को रीड, राइट और डिलीट तीनों दे दिए. तो व्हाट इट मींस, ये पुराने वाला है. तो हम लोगों को पता है कि ग्रुप 1 के बच्चे दे कैन ओनली see the content that is available in the database, but group B they can see the contents and also edit the content but not able to delete the content. But in the case of group 3, they can read the content, edit the content and also delete the content. So this is called the access control. Clear? Here it give you an example. Let's start with this PPT. The file access control functions like a bank. Inside your local bank is a wallet with safety deposit boxes where you can store your valuables such as the deed to your home, knowing that no one can access the deed without accessing to the wallet, and the key to your safety deposit box. What it means, वो जो locker system होता है, they give the कहता है access control same हो गया locker system का. Suppose I purchase a locker in a bank, तो मेरे पास जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई गोल्ड का सामान है तो मैं अपने लॉकर में रख लूंगा. अब लॉकर का एक्सेस किसे होगा? अकाउंट होल्डर को. एंड अकाउंट होल्डर कौन है? अमित सिंह. तो मैं अकाउंट होल्डर हूँ, मेरे अलावा कोई वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, या वो कर सकता है जिसको मैं परमिट करूंगा विद द की. क्लियर? In a similar manner, important computer files can be protected by the operating system file access control feature. Now they have the file access control features through which we can save our files, or we can provide some security on our files by giving the different file access control in between the different users. Clear? In this lesson, we will explore how an operating system can protect or allow access to files and directories. How the operating system give the different access to the files and directories, वो हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं. ठीक है. सेटिंग परमिशंस. परमिशन मींस एक्सेस देना. तुम लोगों को रीड की परमिशन दे दी तो आई जस्ट गिव यू द एक्सेस ऑफ रीड. तुम्हें मैंने एडिट की दे दी तो आई जस्ट गिव यू द एक्सेस ऑफ राइट. नाउ you are able to write anything in the particular database. Clear? So these are called the permissions. Operating system control the file access by setting permission for the files and directories. The number of files and directories they are loaded in your system, and who is responsible for that? The operating system. They have the different categories, and categories or file access control or setting permission, through which now it depends upon the administrator कि कौन से user को कौन सा access देना है. Clear? Operating system control the file access by setting permissions for the files and directories. Permissions can be set to grant or deny. Grant means allow कर देना, deny means उसको deny कर देना, stop कर देना. Access to a specific files and directories. When permission is granted, you can access and perform any function in the file or the directory. When permission is denied, you cannot access the file or directory. The most common permissions are read, write, delete and execute.
वही जो सॉरी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव द डिफरेंट सेटिंग परमिशंस। जो जो परमिशन तुम लोगों को मिलती जाएगी, तुम लोग वो एक्शन परफॉर्म कर सकोगे अपने वाले डेटाबेस में। एंड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्लियर? नेक्स्ट, now they have the four different major permissions. Read, we all know, allows a user to open and read a file or directory. Write allows a user to open the file or directory, make changes and save those changes. This is called the write permission. Delete allows a user to delete the file or directory. जिसके पास delete होगा वो delete कर पाएगा. And last one is execute. Execute allows a user to run an executable file. Certain files are executable files, usually ending in .exe or .com, which starts an application on your computer. So these are the four different permissions. Clear? Read means you are only able to read the content. Write means you are able to write something on the particular file or folder. Delete means now you are able to delete any file and directories. Execute means the number of executable files are there. If the execute is permit to you, permission मिली हुई है, तो we are able to execute any executable file. Otherwise, no. Clear? Permission can be granted or denied to one person at a time or to group of a people. Let's say you are working in a group of 100 people. अब ये वही एग्जांपल होगी जो तुम लोगों को अभी मैंने बताई। 17 बच्चे थे, 3 ग्रुप बना लिए, 5 5 7 डिफरेंट परमिशन दे दी। जिसको जो परमिशन होगी वो स्टूडेंट वही काम कर सकेगा, जिसको जो परमिशन नहीं होगी वो हम लोग कर ही नहीं सकते। क्लियर? Let's say you are working in a group of 100 people and you want to allow only 20 of these people to have access to your budget directory. You could apply permission to each person individually, but that's a bit time consuming. In this case, it's better to create a group in the user manual console and those 20 people to the group and grant or deny permissions to the entire group. जैसे मैंने तुम्हारे ग्रुप्स बना दिए थे 5 5 और 7 का, उसमें क्या किया, कुछ को रीड दे दिया, कुछ को रीड एंड राइट दे दिया, कुछ को रीड राइट डिलीट दे दिया। क्लियर? Combining permissions. Combining permissions, as the name implies, we can also combine the permissions. Permissions can be combined to allow and deny specific functions. Suppose you are working on a budget and wants Sally's input. You can share the budget directory with Sally and grant her read and write permission. However, you do not want Sally to accidentally delete the budget directory on any files, so you can deny the delete permission. What it means, Sally एक लेडी है, who is working in our organization. हमें चाहिए कि वो रीड और राइट कर सके, तो रीड राइट उसको परमिशन दे दो अपने वाले कोई भी एक, इसने एग्जांपल दिया अपने बजट की फाइल में, और हम लोग चाहते हैं वो डिलीट कुछ ना कर सके, तो डिलीट परमिशन को उसको डिनाई कर दिया। अब हुआ क्या, वो रीड और राइट कर सकती है, उसमें लिख सकती है, डिलीट नहीं कर सकती किसी भी फाइल को। सो दिस इज कॉल्ड द कंबाइन द परमिशंस। कंबाइनिंग परमिशंस मींस वी कैन कंबाइन मोर देन वन परमिशन विद अ सिंगल यूजर। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज रूल बेस्ड असेस कंट्रोल, और इसको RBAC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब रूल बेस्ड असेस कंट्रोल पढ़ने से पहले तुम्हें वैसे बता दूं, इट इज असेस कंट्रोल, बट असेस कंट्रोल इज बेस्ड ऑन रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मींस कंपनी में तुम्हारा क्या रूल है। ये सारा पढ़ने से पहले तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर तुम्हें इजीली समझ आए। जैसे हम लोग बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में 3 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। द फर्स्ट, हु इज़ द मैनेजर ऑफ द बैंक। सेकंड, हु आर द एम्प्लॉयज़ जो दे आर सिटिंग टूवर्ड इन फ्रंट ऑफ सिस्टम्स। थर्ड क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल या दूसरा आ जाएगा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोल देते हैं, जो वहाँ पे स्वीपर होगा या जो वहाँ पे पानी पुनी पिलाने के काम, पानी पुनी पिला रहा होगा। क्लियर? तो व्हाट इट मीन्स, नाउ वी हैव द 3 टाइप ऑफ users are there, and depend upon the role of that user we can access the permissions. अब manager है, we all know all the permissions are able for manager. मैनेजर के पास सारी परमिशंस होती हैं। उसके बाद थोड़ी कम परमिशन किसके पास होंगी, जो बाकी के एम्प्लॉयज होंगे, जो PO वगैरह होंगे, बैंक में बैठे होंगे। और थर्ड लेवल पे क्या आ गया, वो स्वीपर्स वगैरह, उनको कोई भी परमिशन नहीं होगी, हम लोग नहीं देंगे। क्लियर? तो व्हाट इट मींस, अब ये परमिशन किस बेस पे दी, द रोल। उनका रोल क्या है भाई, वो मैनेजर है, वो वर्कर है, वो स्वीपर है, क्या है। क्लियर? और असेस कंट्रोल सेम रहेगा, रीड राइट डिलीट मॉडिफाई। ये असेस कंट्रोल किस किस को देना है, वो डिपेंड्स अपॉन देयर रोल। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। Role based access control restrict network access based on the person's role within an organization and has become one of the main method for
एडवांस्ड असेस कंट्रोल। अब वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन पे किस पोजीशन पे है, डिपेंड्स अपॉन हिज और हर पोजीशन, उसको हम लोग असेस कंट्रोल दे देंगे। क्लियर? द रोल्स इन द आर बैक रेफर्स टू द लेवल्स ऑफ एक्सेस दैट एम्प्लॉय हैव टू द नेटवर्क। Employees are only allowed to assess the information necessary to effectively perform their job duties. Assess can be based on the several factors such as authority, responsibility, job competency. In addition, access to the computer resources can be limited to the specific task such as the ability to view, create, modify a file. ये वही जो तुम लोगों को समझा चुका हूँ. It depends upon the role or the position of the employee, and depends upon their role or the position, the ability to give to that persons, like they can view the content, they can create some content, or they are able to modify the content. Clear? As a result, lower level employees usually do not have access to sensitive data if they do not need to fulfill their responsibility. वही आ गया. अब कोई स्वीपर है, उसको अकाउंट होल्डर्स की डिटेल देने का क्या मतलब है? हम लोग उसको एक्सेस नहीं देंगे, बिकॉज उसकी जॉब में वो चीज़ है ही नहीं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते नहीं. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? बैंक में साफ सफाई करनी और एम्प्लॉयज़ को पानी और चाय पिलाना. क्लियर? अब उसके बाद आते हैं पीओज. हाँ, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके पास कस्टमर्स आएंगे, पूछेंगे हमारे अकाउंट से ये चेक क्लियर हुआ कि नहीं, तो उनको वो एक्सेस दे देते हैं. क्लियर? This is especially helpful if you have many employees and use third parties and or contractors that make it difficult to close monitor network access. Using RBAC will help you in securing your company's sensitive data and important applications. कहता है RBAC ये जो रोल बेस्ड है, ये वहाँ भी यूज़ होगा जब हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर. थर्ड पार्टी का मतलब है, तुम लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट इन्फोसिस को दिया हुआ है. कंपनी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, बट वो प्रोजेक्ट किसको दिया हुआ है? इन्फोसिस को. मतलब इन्फोसिस के एम्प्लॉयज वो सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होगा? द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अब उसमें क्या है, वो वहाँ पे रोल बेस्ड असेस लगा देते हैं कि इनको वही डाटा शो हो जो इनके काम के अकॉर्डिंगली है, बाकी सरकारी डाटा इनको कोई भी शो ना हो, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में. क्लियर? आई थिंक द क्लियर टू एवरी वन, बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग कि जहाँ पे जो भी क्लियर नहीं होगा, अनम्यूट योर सेल्फ और पूछ सकते हो. क्लियर? नाउ सम ऑफ द डेजिग्नेशंस इन द आरबैक टूल कैन बी इंक्लूड. अब ये डेजिग्नेशंस आ गए जो डिवाइड किए हैं. मैनेजमेंट रोल स्कोप. इट लिमिट्स व्हाट ऑब्जेक्ट्स द रोल ग्रुप इज अलाउड टू मैनेज. कि वो पर्टिकुलर ग्रुप को कौन से हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट्स का रोल दे रहे हैं जो वो एक्सेस कर सकता है. हम लोग लिमिट कर रहे हैं व्हाट ऑब्जेक्ट्स द रोल ग्रुप इज अलाउड टू मैनेज, कि कौन कौन सी परमिशन उसको दे रहे हैं. क्लियर? सेकंड, मैनेजमेंट रोल ग्रुप. पहला स्कोप था, सेकंड आ गया मैनेजमेंट रोल ग्रुप. यू कैन ऐड एंड रिमूव मेंबर्स. नाउ in this case we can add the new members in the group or delete the members from that particular group. जैसे 5 5 और 7 का तुम्हारा ग्रुप बनाया था, मेरे को लग रहा था वो 7 वाले को भी ये परमिशन दे दूँ, तो वो 7 के 7 मेंबर्स को ग्रुप 1 में ऐड कर दूंगा, तो ग्रुप 1 में 12 बच्चे हो जाएंगे. क्लियर? मैनेजमेंट रोल. These are the types of tasks that can be performed by the specific role group. रोल ग्रुप नहीं समझा तो बताता हूँ. रोल ग्रुप का मतलब है एक ग्रुप बनाया बेस्ड ऑन देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनको परमिशंस दे दी. क्लियर? जैसे एग्जांपल वो बैंक वाली लेके चलता हूँ. सपोज मेरे बैंक में 6 पीओस थे, 6 पीओस का एक ग्रुप बना दिया, सभी पीओस को सेम वो देनी थी परमिशन. कौन कौन सी? डेटाबेस एक्सेस करने की. 6 के 6 को ग्रुप बना के एक टाइम पे दे दी. क्लियर? डिपेंड्स अपॉन देयर रोल और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट. दिस लिंक्स अ रोल टू अ रोल ग्रुप. अब ये रोल को परमिट करेगा रोल ग्रुप को. रोल मीन्स जो उनकी पोजीशन है, डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशंस, कौन कौन सी परमिशंस उस ग्रुप को चाहिए थी वो सारी उनको प्रोवाइड करवाएगा. डिपेंड्स अपॉन देयर परमिशन रोल या उनकी पोजीशन, उनको कौन कौन सी परमिशंस चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड करवा देगा. क्लियर? By adding a user to a role group, the user has access to all the roles in that group. जब तुम्हें किसी ग्रुप में ऐड कर दिया तो तुम्हें वो सारी परमिशंस मिल गई जो उस ग्रुप को मिली हुई थी, बिकॉज ग्रुप को साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे सभी परमिशंस आएंगी. क्लियर? इफ दे आर रिमूव्ड, असेस बिकम रिस्ट्रिक्टेड. अगर तुम्हें किसी ग्रुप से रिमूव कर देंगे तो वो सारी जितनी भी तुम्हें परमिशंस मिली हुई थी वो सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तुम्हें नहीं मिलेंगी. क्लियर?
Users may also be assigned to multiple groups in event they needed temporary access to the certain data or programs and then removed once the project is completed. और single user को multiple groups में हम लोग ऐड कर सकते हैं, depends upon the role of that user. जब उसका काम खत्म हो गया तो particular group से उसको remove कर दिया. Clear? Other options for user access may include, बाकी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? प्राइमरी, द प्राइमरी कॉन्टैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंट और अ रोल. जो प्राइमरी मीन्स द प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा किसी भी अकाउंट का या पर्टिकुलर किसी रोल के लिए, डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशन. बिलिंग, एक्सेस फॉर एंड यूजर टू द बिलिंग अकाउंट, बिलिंग अकाउंट का जिसको हम लोग परमिशन दे देंगे. असाइंड टू यूजर दैट. थर्ड, टेक्निकल, अब जो टेक्निकल स्किल्स होंगे जिसके पास जो टेक्निकल टास्क करेगा उसको वो लिए परमिशन दे देंगे. क्लियर? असाइंड टू यूजर्स that perform the technical task. Clear? Last, administrative, access for users that perform administrative tasks. Clear? सपोज एग्जाम्पल बता देता हूँ इसकी. सपोज तुम में से 17 बच्चों में से 7 बच्चे मैंने एडमिन बना दिए तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दे दूंगा. 3 को टेक्निकल काम के लिए 3 बच्चों को रखा तो उनको टेक्निकल रोल असाइन कर दूंगा. 2 को बिलिंग के लिए रखा तो उनको बिलिंग रोल एक्सेस कर दूंगा. कितने बन गए? 15. बाकी 2 बचे उनको प्राइमरी डेटा का एक्सेस देने के लिए तो उनको प्राइमरी एक्सेस दे देंगे. क्लियर? Next, database security refers to the range of tools, controls, and measures designed to establish and preserve database confidentiality, integrity, and availability. कहता बेसिकली वाई वी गिव द सिक्योरिटी टू द डेटाबेस, ताकि मेरा डेटाबेस बचा रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस ना हो और जो डेटा जिनको परमिट किया है वही वो डेटा को उसमें चेंजेस कर सकें और 24/7 अवेलेबिलिटी हो सके मेरे को डेटाबेस की. इसीलिए हम लोग डेटाबेस को सिक्योरिटी देते हैं. क्लियर? Database security must address and protect the following. If you give the security to your database, what will be can be protected? The first is the data in the database. पहली बात क्या होगी? वो डेटा को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे. सेकंड, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो भी तुम लोग यूज कर रहे हो. एनी एसोसिएटेड एप्लीकेशन, इफ एनी एप्लीकेशन दैट इज लिंक्ड विद योर डेटाबेस, उसको भी हम लोग सेम टाइम पे प्रोटेक्ट करेंगे. क्लियर? फोर्थ, the physical database server or the virtual database server and the underlying hardware. Either the database is a physical or the virtual. Physical का मतलब है that is available towards your side. Virtual का मतलब है that is not available at your side but physically they are available some other place but virtually you can access that data. जैसे वो फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते हो, जब फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते हो ना तो वो फेसबुक पे ही रहती हैं. 10 दिन बाद भी उनको ओपन करो तो गैलरी में वो फेसबुक की फोटोज में ऐड होती हैं. बट भाई वो सेव कहाँ पे हुई जाके? फेसबुक के सर्वर पे. तो वो वर्चुअल डेटाबेस है हमारे लिए. हम लोग अप्लाई कर देते हैं, फोटो ऐड हो जाती है. अवेलेबल कहाँ पे होती है? फेसबुक के सर्वर पे. हमारी मेमोरी नहीं यूज़ होती. चाहे 100 फोटोज अपलोड कर दो, 1000 वीडियोज अपलोड कर दो, हो जाएंगी बट हमारी कोई भी मेमोरी यूज़ नहीं होगी. वो वर्चुअल डेटाबेस हो गया. क्लियर? द लास्ट, द कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यूज टू एक्सेस द डेटाबेस. कोई भी कंप्यूटिंग या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी यूज़ हो रहा है वो सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. क्लियर? I think this topic is clear to everyone. Next, what is the need of database security? What is the need of security to provide the database? भाई ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तुम्हें पहले बता दी, भाई यहाँ पे बताया होगा. पहली कि भाई जो मेरा डेटाबेस है उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके. दूसरी, मेरे डेटाबेस की प्राइवेसी मेरे साथ ही रहे या जिसको मैं अलाउ करूँ वही उसमें एक्सेस कर सके. थर्ड क्या होगा कि कोई भी डेटाबेस को डिलीट ना कर सके या डिस्ट्रक्शन ना कर सके, चेंजेस ना कर सके. Clear? Okay, let's start with this. Data security requires system managers to reduce unauthorized access to the system by building physical arrangements and software check. भाई हमारे वाले डेटा को कोई और ना यूज कर सके इसलिए वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द डेटाबेस. वी हैव द टू मेथड्स. आइदर यू प्रोवाइड दिस फिजिकल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स जो भी डेटाबेस अगर फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली क्या अवेलेबल होगा? फॉर एग्जाम्पल इन योर लैपटॉप, तो क्या करेंगे? लैपटॉप पे पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड के बाद बायोमेट्रिक्स लगा दिया, वो सिर्फ मेरे बायोमेट्रिक्स से खुले और किसी के बायोमेट्रिक्स से ना खुले, तो वो हो गया फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. एंड द सॉफ्टवेयर चेक्स. सॉफ्टवेयर चेक्स में we apply the number of softwares are there who are able to provide the security to the databases. तो हम लोग उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर लेते हैं. क्लियर? Data security uses various methods to make sure that the data is correct, original, kept confidentially and is safe. इन चीज़ों के लिए हम लोग उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं.
and it includes the first thing, ensuring the integrity of data. Integrity means the data remains the same, उसमें कोई भी modification आओ, this is called the integrity of data. Suppose if you write the 5 pages and 5 pages contain the 680 words, all the 680 words remains the same, कोई भी changes data में ना हो, this is called the integrity of data. Clear? Second, ensuring the privacy of data. Privacy का means प्राइवेसी रहे, सिर्फ वो लोग उस डेटाबेस को एक्सेस कर सके जिसको मैं अलाउ करूं, बाकी कोई ना कर सके. थर्ड, प्रिवेंट द लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा. प्रिवेंशन करना डेटा लॉस से, बचाना डेटा लॉस ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई उसमें एंटर करके उसको डिलीट करके कोई और चीज ना ऐड कर दे. क्लियर? Data security consideration involves the protection of data against unauthorized access, modifications, destructions, loss, disclosure, or transfer, whether accidental or intentionally. इन सारी चीज़ों को बताना किसको, अनऑथराइज कोई उसे एसेस ना कर सके, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो सके, डेटा लॉस ना हो, डेटा ट्रांसफ़र ना हो, चाहे एक्सीडेंटली. जैसे एक्सीडेंटली का मतलब होता है मैं कोई चीज़ें परफॉर्म कर रहा था, एक्सीडेंटली वो डिलीट हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटली, नॉट इंटेंशनली. सेकंड, इंटेंशनली. इंटेंशनली कौन करेगा? हैकर्स. दे डू ऑल दीज एक्टिविटीज इंटेंशनली. बट जिसको असेस है उससे डिलीट हो जाए तो वो एक्सीडेंटली होता है. भाई एक्सीडेंटली मेरे से कोई फाइल डिलीट हो गई तो वो इंटेंशन नहीं थी मेरी, बिकॉज मेरे तो एक्सेस था, बट एक्सीडेंटली डिलीट हो गई. क्लियर? नेक्स्ट, database access control. Access control, we all know what is access control. Now access control is based on the database because we are giving the security to the database. Just wait for a minute. Okay, yes. uh, Now the database access control. Database access control is a method of allowing access to the company's sensitive data only to those peoples who are allowed to access such data and to restrict access to unauthorized persons. It includes two main components, authentication and authorization. इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ, पहले तुम्हें समझ आ जाएगा. कहता कंपनीज डाटा का एक्सेस देना, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग ईआरपी पे यूज करते हो. अब मेरे को नहीं पता फर्स्ट ईयर में ईआरपी अभी स्टार्ट होगा कि नहीं, बाकी जितने भी बच्चे हैं कॉलेज का ईआरपी है, लॉगिन है, वहाँ पे हम लोग अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, बच्चों को शो होती हैं वो, बच्चे वहाँ से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके बना के असाइनमेंट सबमिशन हो जाती है. जो भी नोट्स हैं वो हम लोग ईआरपी पे अपलोड कर देते हैं, बच्चे वहाँ से लिखते हैं. अब बच्चों के लेवल पे क्या एक्सेस है वहाँ पे? सिर्फ ईआरपी पे असाइनमेंट्स और सेशनल उनको नजर आ जाए. क्लियर? हमारे अब टीचर लेवल पे आ जाओ, तुम्हें सिर्फ वो एक्सेस दिया हुआ है. टीचर्स को क्या क्या एक्सेस है? हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते थे, किसी भी बच्चे का नाम देख सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल सारी अवेलेबल है, सब्जेक्ट डिटेल सारी अवेलेबल है, अटेंडेंस हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है, कितनी कितनी किस बच्चे की अटेंडेंस हो गई है, और ऑल द रिलेटिव इन्फॉर्मेशन विद द स्टूडेंट्स, वो सारी हम लोगों को मिली हुई है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है. अब कौन सा डेटा किसको देना है? दिस इज कॉल्ड डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल. तुम्हें डेटाबेस से क्या एक्सेस दे दिया? ओनली यू आर एबल ओनली टू असेस the assignments and the tutorials and only for the notes. हमारे लेवल पे वी आर द टीचर्स, तो हमें सारा एक्सेस दिया हुआ है. दिस इज कॉल्ड डाटाबेस असेस कंट्रोल. क्लियर? एक बात बताता हूँ, घूम फिर के बात वहीं पे आ जानी है असेस कंट्रोल पे. किस बंदे को के कौन सा असेस देना है, कौन सा असेस नहीं देना. असेस हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब होगा तुम लोगों को तुम्हारे यूज़र नेम, रोल नंबर, यूज़र नेम होगा और पासवर्ड मिल जाएगा, तो बाहर वाला बच्चा कोई भी उसे असेस नहीं कर सकता. क्यों? ओनली यूज़र नेम इज़ योर रोल नंबर. अगर तुम लोग अपना रोल नंबर किसी के साथ शेयर करोगे एंड पासवर्ड, तब वो उसको यूज़ कर सकेगा, अदरवाइज नहीं. दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन. एंड सेकंड, ऑथराइजेशन. अब इफ यू आर ए स्टूडेंट तो तुम्हें क्या ऑथराइज मिला है? सिर्फ असाइनमेंट्स और नोट्स एक्सेस कर सके हो. वी आर द एम्प्लॉयज, वी आर द टीचर्स, तो हमें क्या मिला हुआ है? ऑल द स्टूडेंट डाटा, कोई भी हम लोग डाटा फेच कर सकते हैं. क्लियर? आई थिंक ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से, अब यही चीज़ आ गई होगी.
Now, authentication is a method of verifying the identity of the person who is accessing your database. Note the authentication isn't enough to protect data. वो क्यों? क्यों तुम्हें अभी बता दिया मैंने, ऑथेंटिकेशन समझा दिया, बट तुमने अपना रोल नंबर अपने किसी कजन के साथ शेयर कर लिया और बता दिया उसको ये पासवर्ड है, तो वो अपने घर बैठा वो भी डेटाबेस को एक्सेस करता जाएगा, क्योंकि उसने क्या चेक करना है, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। वो यूजर नेम पासवर्ड जिस किसी के पास होगा वो भी डेटाबेस एक्सेस करता रहेगा। इसलिए एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, which determines whether a user should be allowed to access the data or make the transaction he's attempting. Without authentication authorization there is no data security. फिर हमने ऑथराइजेशन लगा दी, जैसे स्टूडेंट पे ऑथराइजेशन लगी थी, क्या लगी थी, तुम लोग सिर्फ दो चीजें देख सकते हो, इफ यू शेयर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड विद समवन एल्स ही और शी आल्सो एबल टू एक्सेस ओनली दीज टू थिंग्स। हाँ, अगर मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ बिकॉज मेरे को अथॉरिटी है, फिर तुम लोग वो सारी चीज एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? I think the clear to everyone. Now the types of access control. अब database में access control के different types हैं. Absolute access module includes discretionary access control, जो हमारे syllabus का part था वो पढ़ लिया हुआ हम लोगों ने. Second, mandatory access control. Third, role based access control, वो भी पढ़ लिया. And the most common method today and the most recent model is attribute based access control. ये चार हैं. Two are the parts of our syllabus, role based और discretionary, वो दोनों कर चुके हैं. Clear? The first is discretionary access control. With the DAC model, the data owner allows access. Data owner मतलब जो फाइल बनाएगा वो ऑनर हो जाएगा, वो कर सकता है, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, याद होना चाहिए तुम्हें. DAC is a means of assigning access rights based on the user specified role. जिस यूजर का जो रोल है वो उसको स्पेसिफाई करता जाएगा. क्लियर? Second, mandatory access control. MAC was developed using a non-discretionary model, that is opposite to DAC, in which people are granted access based on the information clearance. MAC is a policy in which access rights are assigned based on certain authority regulations. What it means, if certain authority regulations are there, if according to certain authority regulations, if the authority is given to you, then automatically with the help of mandatory access control तुम्हें वो permissions मिल जाएंगे, but it depends upon the authority. Clear? Third, role based, वो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है. Role based grant access based on the user's role and implement key security principles such as the least privilege wait privilege and separation of privileges. Thus someone attempting to access information can only access the data necessary for their role. मतलब वो रोल बेस्ड मिलेगी, वो बंदा वही डेटा एक्सेस कर सकेगा जो उसको एट्रीब्यूट जो उसको गिवन हुआ होगा, एंड गिवन कैसे होगा डिपेंड्स अपॉन हिज और हर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. Clear? Next, attribute based access control. In ABAC, each resource and user are assigned a series of attributes. In this dynamic method, a comparative assessment of the user's attribute include time of day, position and location are used to make a decision on access to a resources. What it means, ये attribute based में क्या होगा, सीरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स तुम सभी को गिवन हो जाएगी, जैसे 17 के 70 स्टूडेंट्स को सीरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने दे दी. अब उसमें क्या होगा, डायनेमिक मेथड है. डायनेमिक का मतलब है हम लोग जब मर्जी जो मर्जी रोल किसी को दे भी सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं. अब इसमें क्या होगा, अब जितनी भी तुम लोग जो भी यूजर को एट्रीब्यूट्स बनेंगे या जितना भी तुम लोग काम करो वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ डे, उस दिन तुम्हें उस रोल की जरूरत है, योर पोजीशन, योर लोकेशन. लोकेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग किस डिपार्टमेंट में हो, तुम्हारी क्या पोजीशन है और तुम्हें उस दिन कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है. डिपेंड्स अपॉन दीज रिक्वायरमेंट्स a number of attributes are granted to you. Clear? This is called attribute based access control. uh, Anything that is not clear to anyone, raise his or her hand, or you can unmute yourself directly. Clear? Okay, if everything is clear, then we move further. The next is database encryption. Encryption पढ़ा होगा सभी ने ग्रेजुएशन में, है ना. इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट पे जैसे मैंने लिखा अपना नाम लिख दिया अमित सिंह, फिर मैंने कोई मेथड उस पर अप्लाई किया तो वो बन गया साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट से वो उसका कोई और ही मतलब हो जाएगा जो रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, वो हम लोग फिर सेंड कर देते हैं. जिसको सेंड करते हैं उसके पास वो रेलिवेंट की होती है, की जो एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया होगा.
फिर वो की को वहाँ पे अप्लाई करता है, वहाँ पे अप्लाई करने के बाद साइफर टेक्स्ट को अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? ये वैसे पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में तुमने। अब ऐसा ही है, हम लोग डेटाबेस को भी इनक्रिप्ट कर देते हैं। With database encryption, an encryption algorithm transforms data within a database from a readable state to a ciphertext of unreadable characters. With the key generated by the algorithm, a user can decrypt the data and retrieve the useful information as needed. Clear? किसी को ये encryption किसी ने पहले नहीं पढ़ी तो बताओ, अनम्यूट करके बता दो। किसी ने अगर ये encryption मेथड पहले नहीं पढ़े तो ओके। Data encryption translates data into another form or code so that only people with access to secret key or the password can read it. Encrypted data is commonly referred to as ciphertext, while unencrypted data is called the plain text. Currently, encryption is one of the most popular and the effective data security methods used by the organizations. Two main types of data encryption exist: asymmetric, also known as the public key, and the symmetric. क्लियर कहता हम लोग क्या करते हैं, प्लेन डेटा है उस पर कोई मेथड अप्लाई कर दिया तो वो प्लेन डेटा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अनरीडेबल फॉर्म में, और उसकी और जिसके पास उस एल्गोरिदम की रेलिवेंट की होगी वही उस अनरीडेबल डेटा को रीडेबल फॉर्म में दोबारा डिक्रिप्ट कर सकता है। मैंने इनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया, यू आर एबल टू डिक्रिप्ट इफ यू हैव द की। क्लियर? और कहता है इसके दो मेथड्स हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। क्लियर? सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वो होता है जिसको हम ऑल्सो नोन एज द पब्लिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में सेम की होगी, उसमें पब्लिक की होगी, पब्लिक और प्राइवेट की। क्लियर? नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाटा इंक्रिप्शन। The purpose of the data encryption is to protect digital data confidentiality as it is stored on the computer system and transmitted using the internet or other computer networks. The outdated data encryption standards has been replaced by the modern encryption algorithms that play a critical role in the security of IT and systems. कहता बेसिकली मेन पर्पस क्या है, अपने वाले डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने का, डेटा को बचा के रखने का, कोई और यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। क्लियर? और वैसे बेस्ट एग्जांपल व्हाट्सअप सारे यूज़ करते हो, किसी के साथ भी कोई भी चैट खोल लेना, वहाँ पे लिखा आता है ऊपर मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सअप कैन रीड और लिसन टू देम। लिखा होता है ना व्हाट्सअप की चैट पे, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है, सपोज मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया, जब मैंने मैसेज सेंड किया तो मैंने सिंपल लिखा कि टुडे क्लास इज एज 12 PM। जब मैंने क्लिक कर दिया, जब वो सेंड हुआ वो तभी इनक्रिप्ट हो गया, तभी वो उसमें चेंज हो गया साइफर टेक्स्ट में, तब तक साइफर टेक्स्ट में रहा जब तक तुम्हारे सिस्टम्स पे वो रिसीव नहीं हो गया। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड। क्लियर? जितना टाइम वो ट्रेवल करके मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ गया वो सारा क्या रहेगा, तब तक encrypted रहेगा। Clear? These algorithms provide confidentiality and drive key security initiatives including authentication, integrity and non-repudiation. Non-repudiation means जो repeat नहीं होगा डेटा, और authentication और integrity तुम्हें समझा चुका हूँ। Clear? Authentication allows for the verification of a message origin, कि message actually आया कहाँ से, authentication उसके लिए। Integrity provides proof that the message content have not changed since it was sent. Integrity तुम्हें पहले बता दिया था, इंटेग्रिटी का मतलब है कि मैसेज का कंटेंट चेंज नहीं हुआ, जो कंटेंट मैंने भेजा था तुम लोग वही कंटेंट रिसीव कर रहे हो। एडिशनली, नॉन रेप्यूटेशन इंश्योर्स दैट अ मैसेज सेंडर कैनॉट डिनाई सेंडिंग द मैसेज। बार बार वो मैसेज डिनाई नहीं कर रहा सेंड करने के लिए, बिकॉज दे आर द ऑथराइज्ड वन एंड द नॉन रेप्यूटेशन इज ऑलवेज देयर। क्लियर? नेक्स्ट, the process of data encryption. Data or plain text is encrypted with an encryption algorithm and the encryption key. The process results in the ciphertext, which only can be viewed in its original form if it is decrypted by the correct key. We all know. Symmetric key cipher uses the same secret key for encryption and decryption of a message or file. Symmetric may remember one thing, the same key used by the sender to encrypt the message and same key used by the receiver to decrypt the message. Clear? While symmetric key encryption is much faster than asymmetric encryption, the sender must exchange the encryption key with the recipient before he can decrypt it.
as companies find themselves needing to securely distribute and manage huge quantities of keys, whose data encryption services have adapted and use an asymmetric algorithm to exchange the secret key after using a symmetric algorithm to encrypt the data. कहता सिमेट्रिक में क्या है, सेम की है, बट क्या है, जब मैंने कोई टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके तुम्हें सेंड किया तो मैं की भी तुम्हें सेंड करूंगा बिकॉज सिमेट्रिक है। कहता है इसलिए नंबर ऑफ कंपनीज फर्स्ट दे यूज द सिमेट्रिक देन दे आर यूजिंग द एसिमेट्रिक। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक अब बोथ द कीज आर डिफरेंट। I just give you the name of that algorithm that I am using the ABC algorithm. Only you use the that particular key that is associated with ABC algorithm. तुम्हें की भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, तुम लोग ऑटोमेटिकली उस एल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी की है वो तुम लोग यूज कर लोगे और डिक्रिप्ट कर लोगे डेटा को जो मैंने इनक्रिप्ट करके तुम्हें सेंड किया था। क्लियर? On the other hand, asymmetric cryptography, sometimes referred to as the public key cryptography, uses the two different keys. वही जो तुम्हें भी समझा दिया, one public and one private. The public key, as it named, may be shared with everyone, but the private key must be protected. The RSA algorithm is a crypto system for public key encryption that is widely used to secure sensitive data, especially when it is sent over an insecure network like the internet. The RSA algorithm popularity comes from the fact that both of the public and private keys can encrypt a message to assure the confidentiality, integrity, authenticity, and non-reputability of electronic communication and data through the use of digital signature. What it means इसमें कंप्लीट मुझे नहीं बताया हम लोग इनक्रिप्शन क्यों यूज करते हैं। दो तरह की हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेम की होगी, एसिमेट्रिक में दो डिफरेंट कीज होंगी। क्लियर? और आर एस एल्गोरिदम है द रविस्ट शमीर एल्डेमन, ये आदमी का नाम था जिसने ये एल्गोरिदम बनाया, उसके नाम से आर एस एल्गोरिदम बन गया। आर एस एल्गोरिदम यूज बोथ द टेक्नोलॉजीज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। So RSA algorithm is used for encrypting and decrypting the algorithms or encrypting and decrypting the data. Clear? Any question till now? Any question? Okay, that's good. Okay, next आ गया द मलेशियस सॉफ्टवेयर। इनके डेफिनेशंस हैं, अब कौन कौन से हैं पहले समझ लो। द मलेशियस सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एनी मलेशियस प्रोग्राम that cause harm to a computer system or network. Malicious malware software attacks a computer or network in a form of virus, worms, trojan, spyware, adware और rootkit. कहता malicious सॉफ्टवेयर क्या है, जो अनऑथराइज्ड होते हैं, अननोन प्रोग्राम्स जो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, आने के बाद हमारे सिस्टम के डाटा को टेम्पर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हमारे सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम्स देनी स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी एग्जांपल्स हैं कोई भी वायरस, वॉर्म्स, कोई भी स्पाईवेयर, ट्रोजन, रूट किट, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिस्टम में वायरस है यार, एक कॉमन वायरस तुम लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव्स में आ जाता है। तुम्हारी पेन ड्राइव्स में मल्टीपल फोल्डर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फोल्डर पे क्लिक करते हो फिर सारा डाटा खुल जाता है, फिर उसी फोल्डर का नाम का एक फोल्डर उसी फोल्डर में भी बन जाता है, उस पर क्लिक करो फिर अगेन डाटा खुल जाता है। वो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ वायरस। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज अ malicious सॉफ्टवेयर which self replicates and attach itself to other files। किसी भी फाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, फाइल्स की कॉपी बनानी स्टार्ट कर देता है। It is capable of executing secretly when the host program is activated. The different types of computer viruses are memory resident virus, program file virus, boot sector virus, stealth virus, micro virus and email virus। वायरस का मतलब है वही अनऑथराइज्ड एक्सेस जो हमारे सिस्टम में चला जाता है, नंबर ऑफ फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब वो हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं, हम लोग कैसे, हम लोग वो फाइल्स को एक्टिवेट करते हैं, ऑटोमेटिकली वायरस एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो हमारे डेटा को स्टील करना शुरू कर देता है। क्लियर? और हमें ये चीज़ का पता भी नहीं लगता। नेक्स्ट, वॉर्म्स। A worm is a malicious software which similar to that of a computer virus is a self-replicating program। However, in the case of worms, it automatically execute। अब worm क्या है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या था, फाइल के साथ कनेक्ट हो गया, फाइल एक्टिक्यूट की, वो भी हो गया। worms ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। worms spread over a network and are capable of launching a cumbersome and destructive attack within a short period। वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली अटैच, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और
प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर देंगे हमारे वाले डेटा के साथ. दीज आर कॉल्ड द वॉर्म्स. क्लियर? ईमेल स्पैम. ईमेल स्पैम पहले भी डिस्कस कर लिया था. ईमेल स्पैम आल्सो रेफर टू अ जंक ईमेल इज अनसॉलिकेटेड मैसेज सेंड इन द बल्क बाय ईमेल. जब कोई भी कमर्शियल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल मैसेज सेंड करती है ना, जैसे 1000 मैसेज सेंड किया, तो ऑटोमेटिकली ईमेल क्या करता है, उसको स्पैम में कन्वर्ट कर देता है. उसको लगता है कि ये फेक मैसेज है. तो हमारे ईमेल में ऑप्शन होती है स्पैम की. जितनी भी कमर्शियल एड्स होंगी वो सारी तकरीबन स्पैम में जाएंगी. या कोई जेन्युइन मेल भी होगी ना, जो नंबर ऑफ पर्सन्स को तुम लोग सेंड करोगे, बहुत ज़्यादा बंदों को, तो वो भी ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाएगी. क्लियर? Often spam email is sent for the commercial purpose. While some people view it as unethical, many business still using spam. The cost per email is incredible low. Cost कम होती है. क्यों कम होती है? Because सेम कंटेंट ही सभी को भेजना है. सपोज जैसे कॉलेज की डेट शीट आ गई, अगर तुम हर बच्चे का ईमेल आईडी होता, तो अगर कॉलेज में 3000 बच्चा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके सेम कंटेंट सभी को भेज देंगे. तो होगा क्या, वो इजी होगा हमारे लिए सेम ईमेल सभी को सेंड करना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द इंडिविजुअल मेल्स टू एवरीवन. क्लियर? और उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है जब वो सेम मैसेज ही सभी को सेंड करवाना है किसी प्राइवेट कंपनी से. तो नॉर्मली कमर्शियल जितने भी बिजनेसमैन है वो ये काम करवाते हैं. क्लियर? स्पैम ईमेल कैन आल्सो बी द मलिशियस अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू योर कंप्यूटर. अब कहता कुछ जेन्युइन होती है, कुछ अनजेन्युइन. अनजेन्युइन क्या होता है, जितने भी उन्होंने वायरस सेंड करना है ना, तो वायरस एक एक को नहीं सेंड करते. ऐसे जैसे तुम लोगों को पहले भी बता चुका, वैसे वो आ जाता है कि टुडे अमेजॉन सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी, नाउ क्लिक ऑन दिस लिंक, यू आर एबल टू विन दिस पर्टिकुलर गिफ्ट्स. हम लोग भी उस पर क्लिक कर देते हैं, वैगन व्हील आ जाता है, फिर उस पर क्लिक कर देते हैं. क्लिक करने के बाद आता है वो आप लोग शूज़ जीत गए हो, बट यू हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर मैसेज इन 8 डिफरेंट ग्रुप्स. अब उसमें क्या हुआ, तुमने 8 को सेंड कर दिया, मिला तुम्हें कुछ नहीं. वो 8 ने आगे घुमाया, उन्होंने आगे सेंड कर दिया. एक्चुअली इनमें वायरसेस होते हैं. फाइल जब भी तुम क्लिक करते हो ना, ओके करते हो, वो वायरस ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारे फ़ोन में एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने के साथ वो अनऑथराइज्ड है. वो अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी जब कोई फाइल एक्टिवेट करोगे, वो हर एक फाइल के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है. इसलिए बोलते हैं कि अननेसेसरली इन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए, और जो इस तरह की मेल्स तुम्हें आती हैं वहाँ मेल्स पे भी क्लिक नहीं करना चाहिए. वेन एवर यू ओपन दैट पर्टिकुलर मेल, ऑटोमेटिकली वो वॉर्म्स तुम्हारे सिस्टम में आ जाएंगे, और वो वॉर्म्स की खासियत है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं. क्लियर? तो आगे से कोई भी ऐसा लिंक हम लोग को ओपन नहीं करना. ट्रोजन. ट्रोजन हॉर्स सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? A Trojan horse or the Trojan is a type of malware that is often distinguished as a legitimate software. Legitimate means the genuine software. It looks like a genuine software, but actually it contains some malware. Trojan can be employed by cyber thieves. The thieves are the hackers that are available on the cyber, and hackers trying to gain access to the user's system. Users are typically tricked by some form of social engineering into loading and executing trojans or the system. सोशल इंजीनियरिंग मतलब वो सोशल साइट्स पे तुम लोग जाते हो, वहाँ पे लिंक्स आए होते हैं ना, इस लिंक पे क्लिक करो तो ये चीज़ मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करो तो ये. कभी तुमने भी देखा होगा, तुम लोग जब डाउनलोड करते थे सॉन्ग्स वगैरह, तो हम लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं, पर वो हमें किसी और लिंक पे रीडायरेक्ट कर देता है. फिर तुम लोग उसको डिलीट करते हो, वापस आते हो, फिर क्लिक करते हो, फिर उस लिंक पे जाते हो. वो सारा वही होते हैं, ट्रोजन हॉर्स ही है वो सारा. वो लिंक के अंदर उन्होंने अनेबल किया हुआ है, जब तुमने क्लिक किया वहाँ चले गए, ऑटोमेटिकली वायरस वहाँ पे आ गया. क्लियर? Once activated, Trojan can able to cyber criminals to spy on you, steal your sensitive data and gain backdoor access to your system. तो वो सारा काम करना फिर स्टार्ट कर देता है. एंड दीज एक्शंस कैन इंक्लूड, वो क्या करा है, डिलीटिंग डाटा, ब्लॉकिंग डाटा, मॉडिफाइंग डाटा, कॉपी डाटा. ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है फिर वो. क्लियर? डिसरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स. तुम्हारे कंप्यूटर की या पर्टिकुलर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा. तो परफॉर्मेंस अपने आप उसकी डिग्रेड हो जाएगी, इधर द सिस्टम और अ नेटवर्क. क्लियर? नेक्स्ट, जूम्बी. जूम्बीज की मूवीज भी देखी होंगी तुम लोगों ने ना, ये उसी तरह के जूम्बीज होते हैं, डेड मैन. ये भी डेड ही होता है वायरस. कैसे? इन कंप्यूटिंग अ जूम्बी इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट हैज बीन compromised by a hacker. Compromised by a hacker means managed or handled by a hacker, a virus or a trojan. या वायरस होगा या ट्रोजन होगा. It can be used remotely for malicious tasks. Most owners of zombie computers do not realize that their system is being used in this way. Hence द कंपैरिजन विद द लिविंग डेड. वही जो तुम्हें बता दिया, जैसे वो zombies होते हैं.
zombies में होता क्या है, सिस्टम्स हैं, जो सपोज आई एम अ हैकर, मैं उस सिस्टम को zombie की तरह यूज कर रहा हूँ, उस सिस्टम से वायरस तुम्हारे सिस्टम में एंटर हो जाएगा। अब होता क्या है, तुम्हारे सिस्टम का सारा डाटा तुम्हारे सिस्टम से मेरे सिस्टम पे आता जाएगा। अब मैं हर एक डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे तुमने जितना मर्जी पासवर्ड लगाया, ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज zombies। क्लियर? नेक्स्ट, बॉट्स। malware bots help in taking complete control over a computer। कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा तुम्हारे सिस्टम का अगर बॉट्स आ गए तुम्हारे सिस्टम में। ये उनको बॉट्स या बॉटनेट बोलते हैं। क्लियर? यूजली बॉट्स आर यूज टू इन्फेक्ट ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्लीट नेटवर्क को हैक करना हो ना, ज़्यादा सिस्टम को, तो छोटे छोटे बॉट्स बना के हम लोग भेज देते हैं। these computers produce a botnet और a bot network। एक बॉट नेटवर्क या बॉटनेट नेटवर्क बना दिया, उसको छोड़ दिया, जिस जिस सिस्टम पे वो चले गए, वो सारे सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस मेरे पास आता जाएगा। क्लियर? malicious bots have been defined as self propagating malware capable of infecting its host and connecting back to a central server। अब बॉट क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम को तो हैक करेंगे करेंगे, एंड कनेक्टिंग बैक टू अ सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर मीन्स जब नेटवर्क को इफेक्ट करेंगे ना, वो नेटवर्क में वो होगा, जो सेंट्रल सर्वर होगा ना, क्लाइंट सर्वर अप्रोच होती है, पता है सभी को, एक सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं, वो सर्वर को अटैक करना शुरू कर देंगे। सर्वर में हर एक क्लाइंट का डाटा होता है, हमें पता है। सर्वर का एक्सेस मेरे पास आ गया तो कंप्लीट नेटवर्क एक्सेस मेरे पास आ गया, सोचो, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? नेक्स्ट, की लॉगर्स। Keyloggers are a type of monitoring software designed to record keystrokes made by a user, one of the oldest form of cyber threat. These keystroke loggers record the information you type into the website or application and send back to a third party. Keylogger क्या होते हैं? तुम ना गूगल पे सर्च करना Keylogger, कोई भी मिल जाएगा, तुम वो उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके जब उसको एक्टिवेट करोगे ना, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, मैं ये कोई वायरस नहीं है। अब इसमें कहता है मैंने अपने सिस्टम पे Keylogger रख दिया, वो कीज को रिकॉर्ड करेगा, और तुम आए, तुमने कहा सर मैंने ना लॉगिन करना था अपनी जीमेल पे, तो मैंने कहा ये लो मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम से कर लो। अब तुम जीमेल पे जब लॉगिन करोगे ना, यूजर नेम और पासवर्ड जो भी लिखोगे, की लॉगर एक फाइल बना देता है पीछे, उसमें मैं बाद में चेक कर लूंगा कि तुमने क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड डाला था। वो की जो भी की प्रेस करोगे ना, उसका रिकॉर्ड रखता है। इसीलिए बोलते हैं ना, किसी के भी सिस्टम पे नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है की लॉगर इंस्टॉल हो उसके, तो तुम्हारी सारी डिटेल वहां पे चली जाए। ये इंस्टॉल करके देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा नेट से। ठीक है? नेक्स्ट, फिशिंग। ये तो सुना होगा। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कनेक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज बाय समवन posing a legitimate institution to lure individuals into providing the sensitive data such as personal identification information, banking and credit card details। बेस्ट एग्जांपल है, वो बोलते हैं ना, हेलो सर, हम लोग आरबीआई की तरफ से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है, तो उसको जारी रखने के लिए प्लीज़ क्रेडिट कार्ड के 16 डिजिट बोलिए, हम लोग बोल देते हैं। सर सीवीवी होगा बोलिए, हम लोग बोल देते हैं। सर अपना फ़ोन नंबर बोलिए, बोल देते हैं। सर एक ओटीपी आया होगा वो बता दीजिए, कई बंदे बेचारे बता देते हैं, और होता क्या है, उनका सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिशिंग। क्लियर? एड्स आती हैं आजकल बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, स्पाईवेयर। Spyware is unwanted software that infiltrates your computing device, stealing your internet usage data and sensitive information. Spyware is classified as a type of malware, malicious software designed to gain access or damage your computer, often without your knowledge. This is called spyware. Spyware क्या है? जो तुम्हारे कंप्लीट सिस्टम की निगरानी करेगा, कौन कौन से इंटरनेट की, तुम लोग इंटरनेट यूजेज डाटा जितना भी होगा, यूजेज डाटा का मतलब होगा कौन कौन सी साइट्स खोल रहे हो, कौन सी साइट पे जाके क्या कर रहे हो, और तुम्हारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो सारी को कंट्रोल करके उस बंदे को दे देगा जिसको एक्सेस नहीं था, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? बैकडोर, नेम से क्लियर हो रहा है ना, बैकडोर एंट्री बोलते हैं ना हम लोग, कि फ्रंट से नहीं एंट्री मिली, चलो बैकडोर एंट्री करते हैं, उस रास्ते से जो रास्ता नहीं है बट हम लोग उसको रास्ता बना लेंगे। A backdoor refers to any method by which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high-level user access on a computer system, network or software application. Backdoor means उन रास्तों से एंटर हो के आना that are not authorized, चाहे वो authorized बंदा है चाहे unauthorized बंदा है। क्लियर? क्लियर है भाई सबको? और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir.
Okay, that's good. Okay, the next is rootkits. A rootkit is a malicious software that allows an unauthorized user to have privileged access to a computer and to restrict areas of its software. A rootkit may contain a number of malicious tools. Rootkit क्या है? नंबर ऑफ टूल्स होंगे, जितने भी हम लोगों ने पढ़े ना, उनमें से कॉम्बिनेशन बना के इकट्ठा बनाते हैं, उसको रूटकिट बोलते हैं. अनऑथराइज होगा, बिकॉज ऑथराइज तो ऑथराइज बंदे को तो हमने अलाउ किया होगा. अनऑथराइज कौन होगा? जिसको अलाउ नहीं किया, जो जबरदस्ती एंटर करना चाहेगा. क्लियर. एंड अ रूट किट में कंटेन अ नंबर ऑफ मलेशियस टूल सच एज की लॉगर, बैंकिंग क्रीडेंशियल स्टीलर. बैंकिंग क्रीडेंशियल मतलब तुम्हारे बैंकिंग डिटेल्स को स्टील करना. पासवर्ड स्टीलर, तुम्हारे पासवर्ड्स को हैक करने के लिए. एंटीवायरस डिसेबलर, एंटीवायरस को डिसेबल करना. एंड बॉट्स फॉर डीडीओएस. डीडीओएस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ये सभी होंगे. अब इसमें क्या है, सपोज मैं रूट किट से तुम्हारे सिस्टम पे एंटर करता हूँ, तो पहला तो की लॉगर है. तुम लोग जो भी एंट्रीज करोगे, मेरे पास उसकी रिपोर्ट आती जाएगी, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड है. उसमें एक मेरे पास था बैंकिंग क्रीडेंशियल स्टीलर. जितनी भी बैंक डिटेल्स डालोगे वो उसको स्टील करके मेरे को दे देगा. पासवर्ड, जो भी पासवर्ड डालोगे वो मेरे को बता देगा. तुमने एंटीवायरस डाला हुआ था, बट मेरे पास एंटीवायरस डिसेबलर है. सबसे पहले क्या करूंगा, वो जाके एंटीवायरस को डिसेबल करेगा, ताकि तुम्हें कोई नोटिफिकेशन ना जाए कि कोई अनऑथराइज एक्सेस आ गया हुआ है. उसको डिसेबल कर देगा, फिर उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा. क्लियर. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग मेजर्स. प्रिवेंटेटिव मतलब प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं. प्रिवेंशन का मतलब है बचा कैसे सकते हैं अपने सिस्टम को. देयर आर द नंबर ऑफ मेथड्स. द फर्स्ट, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाई. या एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो. यूज सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड. सिक्योर मेथड्स को यूज करो. यूज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी. एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से एंट्री करो. कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड. अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो. कंट्रोल असेस टू सिस्टम्स. कंट्रोल असेस कर दो. असेस कंट्रोल पढ़ा है हम लोगों ने, जिसको जो चाहिए उसको वही दो. एडहेयर टू द लीस्ट प्रिविलेज मोड. लीस्ट प्रिविलेज मोड पे एंटर कर जाओ, मतलब कम से कम प्रिविलेजेस बाकियों को दो. लिमिट एप्लीकेशन प्रिविलेजेस. नंबर ऑफ एप्लीकेशन की प्रिविलेजेस को लिमिट कर दो कि 3 या 4 एप्लीकेशन एक टाइम पे ओपन हो सकती हैं, ताकि उनका डाटा स्टील ना हो. इंप्लीमेंट ईमेल सिक्योरिटी एंड स्पैम प्रोटेक्शन. स्पैम प्रोटेक्शन लगा दो कि स्पैम आए ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएं, हमारी मेल पे शो ही ना हो. Monitor for suspicious activity. If any suspicious activity is held in your network, a notification is given to you. जैसे पेन ड्राइव लगाते हो ना, बीप की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं वायरस की, कि some malicious software is inside in your pen drive. And last, educate your users. भाई जितने भी तुम्हारे यूजर्स हैं उनको एजुकेट करो कि ऐसा होगा तो ये मतलब कि कोई अनऑथराइज उसमें एंटर कर रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कैसे एंटीवायरस को ऐड करना है, कैसे फायरवॉल्स को इनेबल करना है, कैसे अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस आ गया तो उसको रोकना कैसे है. सो दीज आर द मेथड्स कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को होने से. क्लियर. ओके. वैसे रह तो 5 स्लाइड्स ही गई हैं यूनिट 1 की, बट मेरे ख्याल से बहुत है आज के लिए, बिकॉज मिक्स ना हो जाए डाटा सारा. अब मेरे को बताओ, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ. कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, अनम्यूट करके मेरे को बता सकते हो. ओके. तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरी वन. Oh, that's good. Now I'm going to publish a poll. I think the poll is visible on your screens.
मेक इट फास्ट भाई, एक स्टूडेंट रह गया है। ओके, आई थिंक सेकंड poll is visible on your screens, so make it fast. Okay, now the third poll is visible on your screens. Okay, so this is all about the today's lecture. Still, if you have any query or any issue, you can contact me. ठीक है, कोई भी नहीं समझ आया कुछ भी है, तुम लोग बाद में भी मेरे को कॉल करके वो कंफर्म कर सकते हो. So this is all about the today's lecture, and now I'm going to uh, end the class for everyone. Okay, students. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, हाँ जी. सर ये लास्ट वाले पोल का आंसर क्या था, राइट वन? Just wait for a minute. Last poll, third poll. यस सर. How many poll था? How many types of access control in the database? यस सर 3 है ना? अभी पढ़ा तुमने? फोर है अभी तो पढ़ा तुमने. रोल बेस्ड, मैंडेटरी, एट्रीब्यूट और डिक्शनरी. यस सर. ओके, आई मिस्ड वन. ओके सर. ओके, नो इश्यूज, नो. तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन वी आर ओनली लेफ्ट विद द 5 स्लाइड्स, और वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1. यस. क्लियर? So okay, thanks students for today's lecture. Now I'm going to end the class for everyone. थैंक यू सर. Okay, okay, bye.